Assalamu alaikum students. How are you in class? I hope you will be fine at your home. Today is Wednesday, 1st July 2020. Open your science books. Have you opened? Okay. Come to page number 25. Page number 25. Have you opened? Okay. Let's start. Texture. T-E-X, tex, T-U-R-E, chur, texture. As you know, one class, we have learned about 5 senses. How many senses? 5 senses. Sense of sight, sense of hearing, sense of touch, sense of taste, sense of smell. In this lecture, when we read about the texture, we also come to know how much important our sense of touch in our daily life. Is it clear? Texture. T-H-E, the, T-E-X, tex, T-U-R-E, chur, texture, O-F, of, S-O-M-E, some, T-H-I-N-G, thing, something, T-E-L-L-S, tells. The texture of something tells us W-H-E-T-H-E-R, whether, I-T, it, H-A-S, has, R-O-U-G-H, rough, O-R, or, S-M-O-O-T-H, smooth, S-U-R-F-A-C-E, surface, smooth surface. The texture of something tells us whether it has a rough or smooth surface. A rough surface may feel S-A-N-D-Y, sandy, H-A-I-R-Y, hairy, T-H-O-R-N-Y, thorny, or bumpy, B-U-M-P-Y, bumpy, R-O-U-G-H, rough, S-U-R-F-A-C-E, surface, M-A-Y, may, F-W-L, feel, S-A-N-D-Y, sandy, S-A-N-D-Y, sandy, H-A-I-R-Y, hairy, S-A-N-D-Y, sandy, H-A-I-R-Y, hairy, T-H-O-R-N-Y, thorny, O-R, or B-U-M-P-Y, bumpy. How we feel this texture of the things is smooth or rough surface. Our sense of touch, how we feel, how we come to know about all these things. These things we come to know with the help of our sense of touch. इन सब चीज़ों को हम कैसे फील करते हैं? जो टेक्सचर होता है चीज़ों का वो रफ़ है या स्मूथ है, वन क्लास, उसका हमें किस तरह पता चलता है? उन चीज़ों के बारे में हम कैसे जानते हैं? हमें इस तरह उस चीज़ों का पता चलता है जब हम उनको टच करते हैं. In these pictures you also come to know there is a
डिफरेंस बिटवीन स्मूथ और रफ सरफेस। रफ कैसी होती है, स्मूथ कैसी होती है। रफ थोड़ा हार्ड होता है, स्मूथ जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, रफ हार्ड होता है, वो आपको इरिटेट कर रही होती है चीज़। आप जब उसको टच करते हो विद योर हैंड्स, एट दैट टाइम यू फील इट इज़ रफ, it is hard. So that's why you say no, it's rough, it is not smooth. Like first picture, SANDY sandy, SAND sand, PAPER paper, sandy sand paper, sandy sand paper। सैंडी सैंड पेपर तो आपने देखा ही होगा, आप लोग यूज़ भी करते हैं आर्ट में, दूसरी चीज़ों में आप यूज़ ज़रूर करते होंगे, आपको इसका पता भी होगा। ओके वन क्लास, जब आप उसको टच करते होंगे, और टच किससे करते हैं हम लोग, विद आवर हैंड्स। और जब हम अपने हैंड्स यूज़ करते हैं हमारी कौन सी सेंस यूज़ होती है, सेंस ऑफ टच। देन वी कम टू नो अबाउट द थिंग, दिस इज़ हार्ड, दिस इज़ सॉफ्ट, दिस इज़ रफ, दिस इज़ स्मूथ। इज़ इट क्लियर? Next picture, you also come to know this is a picture of a cat. Picture of cat, but this cat has hair in her body. HAIRY, hairy, BODY, body. Hairy body किसकी है, cat की। hairy body किसकी है, cat की। जब आप उसको टच करते हैं आप इरिटेट होंगे, किस लिए, हेयर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है THORNY, थॉर्नी, PLANT प्लांट। ये ऐसा प्लांट है जो हार्ड होता है। ठीक है, लाइक फ्लावर्स की तरह का नहीं होता। मे बी आप लोगों ने सम स्टूडेंट्स ने देखा हो, सम ने ना देखा हो, बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमन। लाइक फ्लावर्स, रोजेज, लीव्स, all these things you can look here and there, but ये some students ने देखा होगा, some students ने नहीं देखा होगा। पिक्चर में आपको इसकी शेप नज़र आ रही है और आपको पता चल रहा होगा it is rough, it is hard, that's why we are saying that it is rough surface, it has rough surface। नेक्स्ट, बम्पी बबल रैप। ये तो सब नहीं देखे होंगे, क्योंकि जब भी कोई न्यू आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, समटाइम टॉयज़ में भी आप लेते हैं, तो उन टॉयज़ के अंदर से भी ये निकलता है। और बच्चे आप लोग अक्सर ये इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको ब्लास्ट करने के लिए इसके साथ खेल रहे होते हैं। इसको बोलते हैं बम्पी बबल रैप। ये जो रैप होता है ये बम्पी होता है, BUMPY बम्पी, BUBBLE बबल, WRAP रैप, बम्पी बबल रैप। एटलीस्ट जो स्पेलिंग्स मैं आप लोगों को अगेन एंड अगेन रिवाइज करवा रही होती हूँ, इसको ऑरली पढ़ा भी करें, इसको कोशिश किया करें कि आप इसको लर्न भी कर लिया करें। जो इजी शॉर्ट इसमें स्पेलिंग्स हैं, लाइक सैंडी, रफ, सरफेस, इसको कोशिश किया करें कि आप इसको लर्न करें। ठीक है, बम्पी बबल रैप, इनके स्पेलिंग्स बहुत इजी हैं। आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए इसको लर्न कर लिया करें। अगर ये नहीं भी पार्ट ऑफ सिलेबस है या नहीं भी हम लोगों ने इसको करना, आप इसको साथ साथ लर्न करते जाएंगे, आपकी रीडिंग इससे इम्प्रूव होती जाएगी। इज़ इट क्लियर वन क्लास? नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ सरफेस, अ स्मूथ सरफेस मे बी सिल्की, ग्लासी और वैक्सी। आई रिपीट, SMOOTH, स्मूथ। क्या स्पेलिंग है स्मूथ के? SMOOTH। स्मूथ के स्पेलिंग SMOOTH, स्मूथ। स्मूथ के स्पेलिंग ROUGH, रफ के स्पेलिंग। रिपीट करें आप इसको, ROUGH, रफ, ROUGH, रफ, स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ। स्मूथ सरफेस मे बी सिल्की, ग्लासी
और वैक्सी। ऊपर वाली जो पिक्स थी ये सारी रफ सरफेस को इंडिकेट कर रही थी। ये चीज़ें हमने इसमें आइडेंटिफाई की हैं। नेक्स्ट वाली जो 3 पिक्चर्स आप इसमें देख रहे हैं उसमें आपको सिल्की जो चीज़ें हैं, जो स्मूथ सरफेस का हम लोगों को उससे पता चलता है वो किससे है। इन 3 चीज़ों से आप उसको अपनी सेंस ऑफ टच की हेल्प से क्लियर होती हैं आपको किस किस की, और ये आपने घर में देखी भी होंगी बिकॉज दीज आर द कॉमन थिंग्स एट योर होम। फर्स्ट, सिल्की सिल्क। सिल्क का क्लॉथ अक्सर ये जो गर्ल्स के फ्रॉक होते हैं, समटाइम्स बॉयज़ के भी शर्ट्स वगैरह को सिल्क यूज़ हो रहा होता है। वो कितना स्मूथ होता है, ठीक है, ऐसे ही है ना, स्मूथ होता है ना। आपने टच भी करके देखना है उसको। अगर आपने फ़्रॉक पहनना हुआ है या किसी फंक्शन के लिए मोस्टली वो जो सिल्क का क्लॉथ है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो टू मच सॉफ्ट होता है, उसको आप जब टच करते हैं तो वो आपको फील होता है इट्स टू मच सॉफ्ट। वो सॉफ्ट होता है इसलिए वो स्मूथ सरफेस में आ जाता है। नेक्स्ट है ग्लासी मार्बल, GLASSY ग्लासी, MARBLE मार्बल, ग्लासी मार्बल। सेकंड पिक आपको इसकी नज़र आ रही है, ग्लासी मार्बल। अपनी बुक को ओपन रखा करें अपने सामने, अपने हैंड्स में अपनी पेंसिल को होल्ड किया करें और जिस तरह क्लास में आप रीड आउट करते हैं उसी तरह इसको रीड आउट किया करें। अब हमारा क्या है, ग्लासी मार्बल। जो मार्बल होता है वो भी आपने देखा होगा, ये भी अक्सर टेबल्स में डॉक्यूमेंट्स के लिए उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उनको कैरी वहाँ पे रखने के लिए मोस्टली टेबल्स पे आपने देखा होगा। घर में भी कुछ चीज़ों के ऊपर इसको रखा जाता हो। ये बहुत स्मूथ होता है, इसको टच करके आपने देखना है, ये स्मूथ होता है, ये ग्लासी होता है, इसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इरिटेट करे टच करने के बाद। थर्ड है आपका कैंडल, एक आपको नज़र आ रही है। कैंडल किसकी बनी होती है, वैक्स की, WAX वैक्स, CANDLE कैंडल, वैक्सी कैंडल। वैक्सी कैंडल इट्स टू मच सॉफ्ट व्हेन यू टच इट। जब आप इसको टच करते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होती है। आप इसको टच करके बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होते, बल्कि आप इसको इंजॉय करते हैं। ये बहुत आपको सॉफ्ट और बहुत स्मूथ इसका जो टच है वो आपके हाथों में आ रहा होता है, आप उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। घर में आपके सबके कैंडल्स तो एक कॉमन चीज़ है, होगी भी। आप उसको टच करके देखें, आपको फ़ौरन फील होगा, आपकी फिंगर्स को, आपकी सेंस ऑफ टच आपको ये मैसेज कन्वे करेगी, इट्स टू मच स्मूथ, इट्स टू मच सॉफ्ट। इज़ इट क्लियर वन क्लास? सो दिस थिंग ऑल्सो रिलेटेड विद सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्सचर हमें जितना भी यहाँ पे बताया गया है कि ये टेक्सचर जी स्मूथ है, रफ़ है, ये चीज़ें सॉफ्ट हैं, ये हार्ड हैं, तो ये सारा जो कनेक्शन है किसके साथ है, हमारे सेंस ऑफ टच के साथ। सेंस ऑफ टच हमें कैसे फील होता है, अपने हाथों के साथ, हैंड्स के साथ। इज़ इट क्लियर वन क्लास? It's very easy and interesting lesson today we learned. I hope you are enjoying the reading of science, and I hope you will learn very um, clearly, and it's very important for you. Okay, one class, यू हैव टू लर्न द रीडिंग। रीडिंग आपने ज़रूर लर्न करनी है। रीडिंग के बग़ैर आप साइंस में कभी भी अपना जितना भी पेपर आपका होगा आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपकी रीडिंग जो है वो वीक होगी। इसलिए मैं आपको स्लोली और स्टेडीली ये रीडिंग करवा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो। आज भी ऑलमोस्ट 4 लाइंस आपकी रीडिंग की बन रही हैं, आपने इसको लर्न भी करना है और स्पेशली जो मैं स्पेलिंग बोल रही होती हूँ अगेन एंड अगेन उसको अंडरलाइन किया करें। अगेन मैं उसको रिपीट भी कर देती हूँ। लास्ट टाइम SMOOTH स्मूथ, ROUGH रफ, स्मूथ, रफ, SURFACE सरफेस। इज़ इट क्लियर? इन 2-3 चीज़ों को आप जो इजीली इसको लर्न कर पाएँ वो स्पेलिंग भी लर्न कर लिया करें और साथ में रीडिंग
कम से कम आप 20 to 25 मिनट्स रीड आउट किया करें जिस पेज को, चाहे आप इसी लेक्चर को अगेन रिपीट कर लिया करें, ठीक है। इसमें मैंने आपको स्पेलिंग्स के साथ रीडिंग करवाई होती है। 1 by 1 पेज करवाने का मेरा मकसद यही है कि आप उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करें ताकि आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो सके। ओके वन क्लास, अल्लाह हाफिज़।